सुसमाचार 24वां अध्याय 36 से लेकर 44 वचन। मत्ती सुसमाचार मत्ती रचित शुभवर्तमान 24वां अध्याय 36 से 44। Matthew chapter 24, 36 to 44. मत्ती इसका 24वां अध्याय 36 to 44 36 पासून 44 पर्यंत। जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। मत्ती शुभवर्तमान याचा अध्याय 24 वचन 36 ते 44। त्या दिवसाविषयी व त्या घटकेविषयी पित्याशिवाय कोणालाच ठाऊक नाही, स्वर्गातील दिव्य दूतास नाही, पुत्रालाही नाही। नोहाच्या दिवसात होते त्याप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल। तेव्हा जसे जलप्रलयाच्या पूर्वीच्या दिवसात नोहा तारावात गेला, त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते, लग्न करून देत होते आणि जलप्रलय होऊन सर्वांस वाहून नेईपर्यंत त्यास समजले नाही। तसेच मनुष्याच्या पुत्राचेही येणे होईल। त्यावेळेस शेतात असलेल्या दोघांपैकी एक घेतला जाईल व एक ठेवला जाईल। जात्यावर दळीत बसलेल्या दोघीपैकी एक घेतली जाईल व एक ठेवली जाईल। म्हणून जागृत राहा, कारण कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभू येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही। आणखी हे समजा की कोणत्या प्रहरी चोर येईल हे घर घालण्याला कळले असते तर तो जागृत राहिला असता आणि त्याने आपले घर फोडून दिले नसते। म्हणून तुम्हीही सिद्ध असा, कारण तुम्हास कल्पना नाही अशा घटकेस मनुष्याचा पुत्र येईल। परमेश्वर वाचलेल्या वचनावर आशीर्वाद। ఈ తిరుమలకై ఏర్పాటు చేయబడిన పాఠంగా మత్తయి రాసిన సువార్త 24వ అధ్యాయం 36 నుంచి 44 వరకు చదువుకుందాం. అయితే ఆ దినముల గురించియో ఆ గడియల గురించి తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును గాని ఏ మనుషుడైనో పరలోక మందిని దూతలైన కుమారుడైన ఎరగదు. నోవహు దినములు ఎలాగనో మనిషి కుమారుని రాకడియో అలాగే ఉండును. జల ప్రళయమునకు ముందటి దినములలో నోవాహు ఓడలోకి వెళ్ళిన దినం వరకు వారు తిరుగుతూ త్రాగుతూ పెళ్లి చేసుకొంటూ పెళ్లి పిచ్చుతూ ఉండి జలప్రళయం వచ్చి అందరినీ కొట్టుకొని పో వరకు ఎరగకపోయింది. అలాగనే మనిషి కుమారుని రాకడను ఉండదు. ఆ కాలంలో ఇద్దరు పొలంలో ఉండరు, ఒకటి తీసుకొని పోబడను, ఒకటి విడిచిపెట్టబడను. ఇద్దరు స్త్రీలు తిరిగి విసురుతుందరు, ఒకటి తీసుకొని పోబడను, ఒకటి విడిచిపెట్టబడను. కావున ఏ దినమున మీ ప్రభు వచ్చునో మీకు తెలియదు కనుక మెలకువగా నుండి. ఏ జామున దొంగ వచ్చునో ఇంటి యజమానికి తెలిసిండి నెడ్లా అతడు మెలుగుగా ఉండి తన ఇంటికి కన్నం వేయని మీరు ఎరుగుదురు. మీరు అనుకునని గడియల్లో మనిషి కుమారుడు వచ్చును, కనుకనే మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు ఆశీర్వదించును. Matthew 24 chapter verse 36 to 44. No one
one knows that day and the hour. But concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. For as we were the days of Noah, so we will be coming of the Son of Man. For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, and they were unaware until the flood coming and swept them all away. So will be the coming of the Son of Man. Then 2 men will be in the field, one will be taken and one left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and one will left. Therefore stay awake, for you do not know on that what day your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at the hour you do not accept. Amen. बड़े उच्च से प्रभु आशीष दे, उसके नाम को मान महिमा गौरव से सदा के लिए बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं नूह के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं नूह को प्रभु आपने चुना और मनुष्य जाति पर दोबारा प्रभु आपने आशीष दे दी और उस आशीष में प्रभु हमारा जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने नूह को 120 वर्ष के परीक्षा ली और प्रभु उसमें वो उत्तीर्ण हुआ। उसने अपने परिवार को तैयार किया। आज इस सुबह के समय दोबारा जब हम आपके वचन को पढ़े तो प्रभु आप हमें सहायता मदद करें नूह की तरह कि हम हमारा खुद का हमारे परिवार का बचाव करें, सुरक्षित रखें और प्रभु जिस प्रकार से नूह परमेश्वर की दृष्टि में जीवन पाया, आशीष पाया, उस प्रकार का अनुग्रह हमारे जीवन पर रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर दे, आप हमें छू ले, आप हमें स्पर्श कर दे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर जब हम ग्रहण कर रहे तो प्रभु आप हमें आशीषित करें। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम सब पर आपके पवित्र आत्मा को भेजते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात का, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया है। बहुत से बार हम हमारे जीवन में जब बाइबल पढ़ेंगे नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे, इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पुरानी नियम मत पढ़िए, नया नियम पढ़िए, बहुत है हमारे जीवन के लिए। तो प्रभु ने हमें जहाँ पर मत्ती, लूक, यूहन्ना, मार्कुस रचित सुसमाचार में जो लिख कर दिया है वो हमें पूरी रीति से आनंदकालीन जीवन में हमें हमारे परिवार को लेकर जाने के लिए सक्षम है। प्रभु यीशु करो, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ हमारे बाल बच्चों के साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर बात से हमें शिक्षा दी है, प्रभु यीशु मसीह ने। और एक बात याद रखिए, जब हम ट्रेन का टिकट निकालते हैं तो वहां पर समय लिखा रहता है कि हम ट्रेन पर समय पर जाए। ट्रेन छूटकर जाती है तो उसके बाद देखिए कैसा महसूस होता है। ऐसा एक बार ट्रेन चली जाएगी और टिकट हाथ में रहकर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। प्लेन का भी वैसा, वो लोग अपने को जल्दी बुलाते हैं, जल्दी आना, क्योंकि एक बार वो पायलट ने एक बार इंजन स्टार्ट किया तो उसे रोक नहीं सकते, उनके नियम है हर एक बात के। ड्राइवर एक बार चालू करता है तो उसके सामने कितने भी लोग आए तो भी वो ब्रेक नहीं लगाता। एक बार चिंचवड स्टेशन जो पुणे और लोनावला के बीच में पिंपरी चिंचवड, वो चिंचवड स्टेशन पूरा ऐसा कर्वेचर, ऐसा नहीं है, पूरा ऐसा है। ड्राइवर को आगे का दिखता नहीं पटरी के ऊपर कौन खड़ा है। एक बार सवेरे सवेरे मारवाड़ी बच्चे लोग वहां से आए थे, सवेरे ट्रेन से उतरे और वो लोग प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय पटरी की तरफ से उतरे सवेरे 4 बजे। और बहुत सारे, एक नहीं थे, बहुत सारे लोग अपनी बैग लिए और पटरी पे उतर गए। और अपने चर्च का भाई ड्राइवर वो अपनी सवेरे की ट्रेन और उस वहां पर
कॉशन ऑर्डर कुछ नहीं था, वो करीब 80 के ऊपर के स्पीड से गाड़ी चला रहा। वो मूंगी की तरह नहीं था, चींटी की तरह उसके गाड़ी के कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में हमें जब चांस दिया है तो हम हमारे आप को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, सुरक्षित हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया है, कोई मामूली बात नहीं है। जब हम उसको समझेंगे तो आप और मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम परमेश्वर के राज्य में अनंतकालीन जीवन में रहेंगे। हर चीज जब सरकार हमारे लिए मौजूद करती है तो सुरक्षता देखती है कि लोगों की सुरक्षता कैसे है। अगर हम उस सुरक्षता को नहीं हम हमारे जीवन में आजमाएंगे या उसके ऊपर हम नहीं चलेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो, हम हानि पाते, हम हानि पाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सिखाया है, आप हानि पाओगे, आप हानि पाओगे। आपके जिंदगी भर आपने जो जीवन देखा इतना सुंदर, आप और मैं परमेश्वर ने बनाया हुआ जीवन देख रहे हैं। हम शुरुआत में देखिए परमेश्वर ने सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, ग्रह बनाए। रात के समय में, अंधेरे समय में आप आकाश में देखोगे तो हम देख सकते कितना खूब बनाया। हम कहीं नेचुरल पहाड़ पर चले जाते हैं, वहां पर हम देखते तो हम कहते कि सही में परमेश्वर ने बनाया। समुद्र को देखते हैं तो हम कहते हैं कि सही में परमेश्वर ने समुद्र को बनाया। जो शुरुआत में परमेश्वर ने हर एक चीज आपके लिए, मेरे लिए बनाई है, इन आंखों से हम देखते हैं तो हम उसको आनंद लेते हैं और हम महसूस करते हैं कि There is a God, परमेश्वर है, मेरा खुदा है जिसने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए। और वही परमेश्वर यही चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप और मैं इस इतने सुंदर जगह से कहीं दूसरी जगह फेंक दिए जाओ, नहीं चाहता, नहीं चाहता। ये पृथ्वी बनाने के बाद परमेश्वर ने खुद एक एदेन बाग बनाई, खुद पृथ्वी पर तो रखा मनुष्य को और कहा कि आप सब जगह पे फैल जाओ, आनंद लो। तो उसके अलावा क्या कहता, जब शुरुआत में बनाया तो बोला नहीं मैं बना तो उसमें रखता हूँ और विशेष एदेन बाग में रखा था परमेश्वर। परंतु हम देखते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन किया तो प्रभु ने अपनी बाग से निकाल दिया। वो तो अपनी सृष्टि से नहीं निकाला आपको मुझे, आपको मुझे नहीं निकाला, नहीं निकाल दिया। परंतु एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया मनुष्य के जीवन में, आदम और हवा ने भी जितनी गलती नहीं की थी उतनी इंसान ने कर दी। आदम हवा ने एक आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने एदेन बाग इस पृथ्वी पर बनाई थी, वहां पर रखा था, उधर की आज्ञा उल्लंघन की, ठीक है बोला आज नहीं तो कल मेरा बेटा, मेरा आदम, मेरी बेटी हवा मन फिराएगी और फिर से एदेन बाग में आएगा। ये चांस दिया था और दोनों ने बाल बच्चे पैदा कर जिस प्रकार से एदेन बाग से बाहर आए वैसे ही अपने बच्चों को भी बाहर लेकर घर जा रहे हैं, वैसे ही बच्चों को बाहर लेकर एदेन बाग में जाने के लिए तैयारी नहीं। और वही बात 6 आपने उत्पत्ति का 6 याद रखें और हम 6 बन जाते हैं, 3-6 उत्पत्ति की किताब 6 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है कि उत्पत्ति का 6 जो कि आखिरी में प्रकटीकरण के वचन में भी आएगा, हमारे माथे पर हम लेने वाले नंबर 666। जब 6 लगेगा तो हम नरक नहीं गए समझो, मतलब हमें परमेश्वर की शिक्षा मिलेगी, परमेश्वर की सृष्टि में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के घर में मैं, मेरे बच्चे, परिवार नहीं रहेंगे। वहां पर क्या लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, आपको और मुझे बनाने से पछताया, ऐसा लिखा है। दुख हुआ। हम सोचते ना ट्रेन चली गई, बहुत दुख हुआ, प्लेन चले गया, टिकट था, पैसे दिए थे, सब कुछ चले गया, कुछ नहीं कर सकते। उस प्रकार की अवस्था मनुष्य ने
उस समय में की, जब आदम और हवा के बाद संतति मनुष्य बढ़ गए, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य की को बनाने से पछताया, दुखी हो गया। मैं सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, समुद्र बनाया, पहाड़ बनाए, फल बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ बनाया, सब अच्छा बनाया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब मनुष्य को बनाया, उसको बढ़ाया, उसको आशीष दी, तो यहाँ पर परमेश्वर दुखी हुआ। 6 वर्ष, और वो 6 कौन है? हम, वो मनुष्य बन गया। तीसरा 6 कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं रहता। 6 स्त्री रहेगी तो अच्छी है, पुरुष रहेगा तो अच्छा है। 6 नंबर का जब बनते हैं तो परमेश्वर की लिए बराबर, जो आशीष परमेश्वर ने स्त्री पुरुष बनाया, वो आशीष से वंचित रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में क्या लिखा है? दुखी हुआ। परमेश्वर दुखी हुआ। किसकी वजह से? मनुष्य के वजह से। आपको और मुझे बनाने के द्वारा परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष है उत्पत्ति, और छठा हम बन जाते, हम बन जाते। कि यहाँ पर परमेश्वर दुखी हुआ हमारी ओर देखकर, और वही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जागरूक रहने के लिए कहा है। वही परमेश्वर चाहता है कि हाँ, आप और मैं, हमारा परिवार, हम सब परमेश्वर के घर में रहे। वही परमेश्वर को हमें आनंद देना है, उसे जो दुख हुआ था उस आनंद को देना। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने नूह की ओर देखा, नूह की ओर देखा। नूह की वजह से उसकी पत्नी बची, उसके बच्चे बचे, और उसकी बहू लोग बचे। नूह की वजह से नूह को परमेश्वर ने देखा, पूरे मनुष्य को जब देखा तो दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। ऐसा मैं क्यों किया? ऐसे कैसे हो गया मेरे से? आपको और मुझे बनाने को, अपने प्रतिरूप, अपनी रूह भर के दिया आपको और मुझे। हम उसकी रूह से पूरी दुनिया को देखते हैं, आनंद लेते हैं, हर दिन आनंद लेते हैं। हर दिन आपको और मुझे स्वतंत्रता दी। भारत देश में तो दूसरे देश से बहुत स्वतंत्रता है। सिग्नल तोड़ दिया तो भी कुछ नहीं होता है, कुछ आपका लाइसेंस भी जब्त नहीं होता है। भारत देश में आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। इतना स्वतंत्रता हमको भारत देश में दिया है। सोचिए परमेश्वर, कोई किसी को कुछ भी बक देता है, मुंह में आएगा वैसा। इतना स्वतंत्रता दिया। आदम और हवा से भी आपको और मुझे भारत देश में, हमारे देश में स्वतंत्रता है। मैं एक बार नए पासरे में रह रहा था, ऊपर रह रहा था, नीचे देखा मसीह भाई बहन रह रहे थे। उनका झगड़ा शुरू हो गया। वो औरत डंडा लेके उसके पीछे, बड़ा डंडा लेके, मैं डर गया, बोला अभी भी डाइवोर्स हो जाएगा। इतनी स्वतंत्रता दी है, आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश में आपको मुझे परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है। आदम और हवा को तो कहा था ये इधर जाने का नहीं, पेड़ पे जहां नहीं जाने का वहां पर जाते हैं, जब नहीं देखने का वो देखते हैं, जो नहीं बोलने का वो बोलते हैं। इतना स्वतंत्रता हमें परमेश्वर ने दी है, परंतु प्रभु कहता है कि जागरूक रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता है तो उस समय उन्होंने परमेश्वर को क्रोधित किया, दुखी किया, नाराज किया, और परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं सबको खत्म करूंगा, और खत्म कर दिया। यहाँ पर 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वही पैराग्राफ लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद आपको और मुझे बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय और 6ठा वचन को 2 बार आपके लिए, मेरे लिए निकाल के दिया कि आप उसको पूरा मत करो। आप और मैं 6 को पूरा नहीं करें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जिस दिन परमेश्वर दुखी, नाराज हो, उसने डिसीजन ले लिया था, मैं मनुष्य को खत्म कर दूंगा। कितने दिन में? 40 दिन 40 रात में खत्म कर दूंगा।
डिसीजन परमेश्वर ने ले लिया था। और प्रभु यहाँ पर भी वही बात बता रहा है कि जब परमेश्वर आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो दिन, वो रात, वो सुबह, वो दोपहर, वो शाम, हमें नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है, जैसे नूह के दिनों में था। जिस दिन नूह का दिन था, जिस दिन मैं मनुष्य को देखा, और उस दिन जिस प्रकार से मैं नाराज हुआ, दुखी हुआ, खेदित हुआ, उस दिन की याद दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। 120 वर्ष दिए थे, 120 वर्ष नूह को जहाज बनाने। इतना बड़ा जहाज था, उसके उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, कटर वगैरह नहीं था, जल्दी बना लेता था। वो खेत में जाता था, जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था, उसकी डालियां काट कर बच्चों उठाकर लेकर आकर उसको बनाता था। सोचिए इतना बड़ा दूध, 120 साल लगे उसको उस जहाज को बनाने में। 120 साल का, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया था? चांस दिया था लोगों को। 120 साल का चांस दिया कि मेरे लोग, जो डिसीजन लिया था 6 कि मैं इनको नष्ट करूंगा, नूह को बताया कि तू जहाज बना। 120 साल लगे। अब 120 साल नूह किस प्रकार से विश्वास में रहा, सोचिए। 120 साल विश्वास में रहा। परमेश्वर ने कह दिया है तो वैसे ही होगा। लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर ने कह दिया, वैसा ही होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह भी वही कह रहा है कि जैसे नूह के दिन में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर चढ़ जाए, 120 साल 120 साल कंप्लीट होने तक, जब तक वो जहाज में चढ़ता नहीं, उस समय तक, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हर दिन सवेरे दोपहर शाम को नाश्ता खाना पानी सब कर रहे। उनमें विवाह होते थे, शादी हो रही थी, हर त्योहार हर बात को मना रहे थे, आनंद कर रहे थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वह न ले गया, जब तक जल प्रलय उन सबको, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं, उनको कुछ भी मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। विश्वास नहीं किया था। जब तक उन्हें पता नहीं चला, कब तक पता नहीं चला, गाड़ी छूट कर चली गई, जाने के बाद पता चलता है समय पर नहीं आया, समय पर नहीं आया। उन्हें पता नहीं चला मेरे बच्चे डूबकर मर रहे, तब तक उन्हें पता नहीं चला मेरे घर के लोग पानी में डूबकर मर रहे हैं, तब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। मर गए फिर भी नहीं पता चला, नहीं पता चला कहां पर गए। जो जीवन देख रहे थे सुंदर सा, अपने परिवार के साथ रहे थे, अपने बाल बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ रह रहे थे, और उन्हें पता नहीं चला, सब नष्ट हो गया, खत्म। और प्रभु यीशु मसीह वही बात को दोहरा रहा है यहाँ पर नए नियम में आपके लिए, मेरे लिए, कि आप और मैं, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी पानी से नहीं नष्ट करूंगा, तो जब प्रभु आएगा तो बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी। लिखा है, प्रभु ने लिखा है, जो विश्वास में होगा उसे ले लिया जाएगा। विश्वास में होगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में होगा हमारे घर में। यहाँ पर लिखा है पति पत्नी को एक कहा है, फिर भी प्रभु कहता है ना, यहाँ पर क्या क्या, 2 जन खेत में, एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। जो स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक को ले लिया जाएगा, दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए 42 वचन 42 वर्ष जो है हमारे, यही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अध्ययन करने के लिए।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, बी अलर्ट, बी अलर्ट। प्रभु यीशु मसीह ने नूह 120 साल तक लकड़ी काट कर बना रहा था, उस विश्वास में था कि प्रभु मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे बहू को बचाएगा। 120 साल तक हर दिन काम कर रहा था, हर दिन लोगों के पास जा रहा था, हर दिन भाई बहन के घर पर जा रहा था, हर दिन रिश्तेदार के घर पर जा रहा था, बता रहा था, हर दिन परमेश्वर का काम कर रहा था। पर यह बात नहीं भूला कि परमेश्वर अलर्ट रहा, जागरूक रहा। 120 वर्ष जहाज में पैर रखने तक विश्वास में था कि परमेश्वर ने कह दिया है मतलब वैसा ही होगा। अगर परमेश्वर ने नहीं तो मैं नहीं बचूंगा, मेरी पत्नी नहीं बचेगी, मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। नूह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नूह का एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को यहाँ पर दोहराया और 42 वर्ष में उसने आपको और मुझे विश्वासीगण को कहता है जागते रहो, अलर्ट अलर्ट रहो। आपके और मेरे तो जीवन में हम काम 20 साल 25 साल 30 साल करते हैं, नौकरी उसने 120 साल काम किया। जब परमेश्वर ने उसे सुना 120 साल तक जागरूक रहा। सोचिए उसकी एग्जाम 120 साल की थी, 120 साल उसने एक दिन भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और परमेश्वर का सुसमाचार बताता रहा। जहाज में अपने पत्नी को भी लिया, अपने बच्चों को लिया, बहू को लिया और जहाज में चल गए। 120 साल और 40 दिन की परीक्षा में पास हुआ, 40 दिन की परीक्षा में पास हुआ, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप और मैं, हम खुद हमारे बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो कोई दूसरा नहीं आएगा। शैतान तो हर दिन आएगा और कहेगा डूब के मरो, आग से मरो। जिस प्रकार से उस समय के लोग कर रहे थे, मर गए पता नहीं चला, मरने के बाद भी पता नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह ने कहा है स्पष्ट रूप से आप और मैं नहीं मरेंगे, ये भी कहा है प्रभु यीशु मसीह, नहीं मरेंगे। यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 51 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप मेरी वचन पर विश्वास रखोगे तो आप और आपका परिवार, आपके बाल बच्चे नहीं मरोगे। यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे। यूहन्ना 8:51 वर्ष में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर स्पष्ट रूप से, पढ़िए जोर से आवाज। मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, मैं तुमसे सच-सच कहता यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। मृत्यु नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लिखा है कि वो सब लोगों ने मृत्यु को देखा, अंधकार में चले गए, नहीं समझ पाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है आप मेरे पीछे पीछे चलोगे। नूह 120 साल चला अपने परिवार के लिए, आप चलिए ना, आप और मैं चलना क्या कौन सी बड़ी बात है। नूह अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए चला 120 साल तक। 120 साल तक हर दिन सवेरे उठ के काम किया, हर दिन रिश्तेदारों के घर पर गया, हर मेहमानों के पास गया, मित्रों के पास गया। वो लोग उसको आकर देखते थे तू पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है, कड़ी धूप है और तू जहां पर जहाज बना रहा है वो समुद्र भी कोसों दूर है। जितना बड़ा जहाज बना रहा है उसे खींचने के लिए भी आदमी लोग नहीं है। जितना बड़ा जहाज बना रहा है वो तैरने के लिए पानी तो आना चाहिए, पानी तो। मूर्ख कहला है उसको, मूर्ख। परमेश्वर के वचन को हम कभी-कभी मूर्खता से शैतान में ले नहीं कहता है। आदम हवा को बेचारे को फंसा दिया ना परमेश्वर के वचन से, उनको मूर्ख ठहराया। पर आप और मैं मूर्ख नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें कि आप मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मृत्यु को नहीं देखोगे, मतलब नहीं देखो। जिस दिन आप और मैं मर जाते ना उस दिन हम लाजर के साथ खाना खाएंगे। वो क्रूस पर तो बाद में छोड़कर उसको क्या कहा आज तू मेरे साथ रहेगा पैराडाइज में।
और वो वहां पर गए। वो चोर था, परंतु प्रभु ने उसे अभिवचन दिया। ये वचन मत्ती 9:51 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने, जो मेरे पीछे आएगा, जो मैं सिखाई हुई बात पर चलेगा, मौत को नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। मैं नहीं देखूंगा, मेरे बच्चे नहीं देखेंगे, मेरी पत्नी नहीं देखेगा, मेरा भाई, मेरी बहन नहीं देख सकते। जिस दिन मौत आती है उस दिन परमेश्वर हमें आप इन्हीं आंखों से हम देखेंगे। कोई दूसरी आंख नहीं, जो आंख से हम इस सृष्टि को देख ले, वही सृष्टि से परमेश्वर के घर में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 42 वर्ष में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। नहीं जानते। प्रभु ने हमें 2022 में भी देख रहा है। प्रभु आप ऐसे गुमराह नहीं रहना है जिस प्रकार से उस समय लोग गुमराह थे। गुमराह है। अभी तो पानी नहीं आएगा, अग्नि आने वाली, अग्नि ऐसा लिखा है, अग्नि की बारिश, बारिश गिरेगी, बारिश गिरने ये पक्का है। पर बारिश जो गिरेगी वो सल्फर रहेगा। पानी चेंज किया परमेश्वर ने जब उनको मार दिया तो डूबकर पानी पीकर मर गए। पानी पी पी कर नाक में, मुंह में, सब जगह पे पानी जाकर, छोटे बच्चे से लेके, सोचिए जो पैदा हुआ रहेगा सवेरे और बारिश शुरू हो गई, 2 दिन में वही वो भी खत्म हो गया बच्चा। कितने बच्चे खत्म हुए, कितने नौजवान बेटा बेटी, कितने बुजुर्ग लोग उस पानी से, पानी पी पी कर परमेश्वर। और प्रभु ने नई नियम में लिखा है, उस दिन पता नहीं है, पता नहीं। आर ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, सल्फर गिरने वाला है और दूसरी जगह पर भी नहीं गिरेगा। दूसरी जगह पर मेरे बच्चे के सर पर गिरेगा, मेरे सर पर गिरेगा, मेरे सर पर गिरेगा। प्रभु कहता है कि जागते रहो, बी अलर्ट। मैं मेरे परिवार को मैं ही बचा। नूह ने अपने परिवार को बचाया, उसने नहीं बचाया। मैं क्या लिखा है, 6 याद रखो, 6 बन गए थे लोग, इंसान बन गए, जो 6 बन गए कंप्लीट खत्म हो गए। उत्पत्ति की 6 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और मनुष्य 6 बन गया, 6 लिख दिया। नई नियम में भी वही हमें पता है। अब प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु ने वचन दिया, मेरे पीछे चलो, अपने बच्चों को सिखाओ। और जब हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर ने उनको वही बात बताई थी, जब वो मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया, मूसा के द्वारा जब उन्हें छुड़ाया, व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में वहां पर परमेश्वर ने उन्हें क्या बताया था, परंतु वो लोग उस प्रकार से नहीं चले। 4 से लेकर व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में 4 से लेकर देखिए, वहां पर आज्ञा दी थी उनको कि आपको किस प्रकार से, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक ही है, दोबारा नहीं आएगा लहू बहाने के लिए, दोबारा नहीं आएगा। आपके लिए, मेरे लिए लहू बहाया है, आपके लिए, मेरे लिए जहाज तैयार है। आपको और मुझे उसमें प्रवेश करना है, नूह की तरफ। परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से साथ प्रेम रखना, और यह आज्ञा मैंने तुझे जो सुनाई है वो वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने, पहले तू अपने मन में ठान ले कि मुझे परमेश्वर के राज में जाना है, और उसके बाद तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर। नूह ने 120 साल तक अपने बच्चों को वही सिखाया। एक बच्चे को भी उसने गलत होने नहीं दिया। हो जाता था परमेश्वर उसको मार देता था। 3 बेटे थे उसको, 3 बहू थे, उसने बचाया ना अपने बच्चों को। दुनिया गलत बोल रही थी, कभी कभी रिश्तेदार भी आके बच्चों को बोलते थे बाप बिगड़ गया है शायद से, और तुम भी अपनी जिंदगी में यही काम कर रहे हो। तुम तो समझदार हो, तुमको तो समझ है, अपने बच्चों के लिए कुछ तो देखो, बाप के पीछे क्यों जा रहे हो, बोला होगा। जब नूह को आके कह रहे थे तू पागल हुआ है, मूर्ख हुआ है,
जहाज बना रहा है, बारिश नहीं गिरेगी, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बच्चों को नहीं बताया होगा, उसके दोस्तों ने, अरे खाओ पियो, कहा जा रहा है काम पे, बोला होगा। जिस प्रकार से हमारे बच्चों को जगत के लोग कहते हैं, और फिर हम देखते कि वो दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, बुरी बुरी शब्द सुनकर आकर घर में गाली दे रहा है। यहाँ पर लिखा था परमेश्वर ने उनको बताया था, अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया कर। सिखाना है, क्यों सिखाया? वो उसने वही सिखाया अपने बच्चों को, साथ में लेकर गया, काटो, बारिश आएगा बच जाओगी, काटो, काम करो, परमेश्वर के पीछे चलो, बारिश आएगा तो मेरे साथ नहीं आएगा, तू मेरे साथ जीवन नहीं देखेगा। डर गया, बाप कह रहा है तो डर गया, विश्वास किया ना बच्चों ने, पिता पर विश्वास किया, उनके बहू ने भी विश्वास किया। हमारा ससुरा कह रहा है तो हम विश्वास कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारी बहू, हमारी सास ने तो विश्वास किया, दोनों पति पत्नी पर विश्वास किया, काम किया, अपने पति के लिए, अपने ससुरे के लिए खाना बनाया 120 साल। आप और मैं क्यों नहीं चले विश्वास में? क्यों नहीं परिवार को लेकर आए चर्च में? आना चाहिए। 120 साल जब नूह ने किया, अपने ऊपर का 6 मार्क बुझा दिया पानी से। आप और मैं अपने ऊपर जो 6 है प्रभु के लहू से बुझा दो, बुझाना चाहिए। हमें मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे जब 6 मार्क आएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और प्रभु ने यहाँ पर लिखा है कि तू क्या कर, परमेश्वर ने हमको बताया कि समझा कर, सिखाया कर, और घर में बैठते समय वही बात कर। परमेश्वर ने बताया था मूसा के द्वारा किस प्रकार से छुड़ाया, परमेश्वर ने बचाया है। मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हम टैटू निकाल के रखते, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को टैटू निकाल के इधर निकाला, इधर निकाला, इधर। अरे परमेश्वर का वचन है, लिखा, ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे बचाया है, मुझे भी बचाएगा। लिख, टैटू निकालते, और बच्चों भी वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि चर्चा किया कर और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांध देना, और ये तेरी आंख के बीच, यहाँ पर लिख के रख, यहाँ पर खून करके रखो, लहू, क्रूस। बहुत सारे लोग तो शर्माते हैं, बहुत सारी बहना भी शर्माते हैं, नहीं वो लोगों के साथ भी इसने टिकली लगा दी। अरे क्रूस की टिकली लगा, क्रूस की टिकली, और तेरे आंख के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजू और अपने फाटकों पर लिख कर रखना। लिख कर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से द्वारा मुझे बचाया गया है, बचाया गया है। और उसके पीछे पीछे चलो। नूह अपने परिवार को, अपने बच्चों को 120 साल तक संभाल के रखा, 120 साल तक संभाल के। परमेश्वर ने डिसीजन लिया है, परमेश्वर ने कहा बस। इसका मतलब क्या? उसकी परीक्षा नहीं थी ना, उसकी परीक्षा नहीं थी। उसके भाई बहन ने उसको बुलाया नहीं, उसके दोस्तों ने उसको बुलाया नहीं, बुलाया ना नूह ने, नूह को भी, उसके बच्चों को नहीं बुलाया, बुलाया। उसके बहू के परिवार के लोगों ने नहीं बुलाया, बुलाया। 120 साल की परीक्षा हो आपकी और मेरी। अभी हम दोबारा 40 दिन में जा रहे हैं आपकी, पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन में। हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, प्रभु कहता है कि बी अलर्ट। क्यों नहीं हम जागरूक रह सकते? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है हमारे से। हम हमारे परिवार को क्यों नहीं लेके जाएंगे परमेश्वर के राज में? लेकर जाएंगे। जब नूह लेकर गया 120 साल, हमारे आयु में तो 50 साल 60 साल रहता है, उसमें आधा सोने, जितना दिन हमको समय मिलता है उसमें क्यों नहीं सिखा सकते? सिखा सकते, कर सकते, बच्चों को लेकर आ सकते, लेकर आइए। उसके लिए उसने परिश्रम किए 120 साल नूह ने परिश्रम किया और बचाया अपने परिवार को, डूबने से बचाया, पानी पीकर मरने से बचाया, मौत से बचाया अपने बच्चों को।
आप और मैं सिवा कोई नहीं बचा सकता। जब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे माथे पर, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर, हमारे चलते फिरते जब तक हम नहीं बताएंगे, हमारे बच्चे नहीं बचेंगे। कैसे बचेंगे? नूह ने बताया होगा ना, हर दिन बच्चे कभी बहुत थक जाते होंगे, अरे आज नहीं जाते, नहीं बेटा, इसके बाद तेरे को परमेश्वर जीवित रखेगा। नई जोश से, नई ताकत से, नई संजीवन से हर दिन बाप अपने बच्चों को उठाया, हर दिन उठाया। 120 साल अपने बच्चों को, अपने बहू को संभाला। कितनी बड़ी आशीष नूह ने की। परमेश्वर ने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह के वो दिन पता नहीं है कब आएगा। मैं घर में बैठा रहेगा, मेरे सामने मेरा जो विश्वासी वो चले जाएगा, मैं रह जाऊंगा, कुछ मतलब नहीं। मैं इतने साल की सेवकाई करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं पास्टर हूँ, जब वो आखिरी स्वर्गदूत आएगा और मुझे नहीं लेकर जाएगा तो क्या मतलब है। मैं हर दिन सोचता हूँ वो स्वर्गदूत आएगा और सबको तुमको लेकर जाएगा, और जब मुझे नहीं लेकर गया तो प्रभु आकाश में बादलों पर रहेगा, स्वर्गदूत आएगा, सबका नाम लेकर आएगा, प्रसाद भाई चलो, मार्टिन भाई चलो, हाँ, सुकीता बहन चलो, और मुझे यहाँ पर कुछ नाम ही नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। क्या हालत होगी? ट्रेन छूटकर चली गई, मैं बैठा बाइबल हाथ में थामे बैठा से, बाइबल को थामे बैठा हूँ, मोबाइल को थामे बैठा हूँ, कभी टीवी को थामे बैठा हूँ, कभी कोई चीज को, कार को, इसको थामे बैठा हूँ अभी भी, तो वैसा ही बैठा रहेगा, समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह नूह ने अपने बच्चों को 120 साल में लेकर गया। परमेश्वर ने कहा था अपने बच्चों के साथ उसने दिखाया। सोचिए जिस दिन उसके बच्चे उस नाव में पैर रखे और बारिश शुरू हो गई, उनके बच्चों का, उसके बहू लोग ने क्या कैसे विचार होगा? सोचिए वो लोग ने सोचा हमारा ससुरा 120 साल से बोल रहा था, मेरे रिश्तेदार भी मेरे ससुरे को पागल कह रहे थे, मूर्ख कह रहे थे, पर जिस दिन उन्होंने पैर रखा अंदर, पर एक हफ्ता पहले हम देखते हैं कि सब एनिमल्स भी आए थे। जब उनका विश्वास बढ़ गया है, अरे सब एनिमल्स आ रहे, रेंगने वाले सांप आ रहा है, मगर आ रही है, सब कुछ आ गए, वो भी डर गए। अरे ये हमारा जो ससुरा क्या है, एक हफ्ते पहले की बात है, 1 महीने पहले परमेश्वर ने बता दिया कि सब जाति के सब पशु सब उसकी जांच की ओर आ गए, पर मनुष्य नहीं आया, एक इंसान भी नहीं आया, मनुष्य नहीं आया, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, तो विश्वास नहीं था परमेश्वर के वचन का। नूह बता रहा था, रो रो कर गिड़गिड़ाकर बता रहा था, वो ऐसे नहीं बता रहा था बारिश होगी मतलब होगी। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है ऐसा ही होगा, एक को लिया जाएगा, दूसरे को रख दिया जाएगा, नष्ट हो जाओगे, जहाज में नहीं जाओगे, नष्ट हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छे से बताया, जागरूक रहो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर आओ ना, मेरे घर मेरे बाग में लेकर आओ, जहाँ पर आज आप 100 रुपए किलो द्राक्ष वहां पर फुकट में खिलाएगा परमेश्वर आपके बच्चों को, अंगूर 100 रुपए वहां पर फुकट में खिलाएगा अपने बच्चों को। हम फल लेकर जाते हैं हमारे बच्चों के लिए, वचन भी लेकर जाओ, वचन भी खिलाओ ना बच्चों को, अपने परिवार में खिलाओ वचन। नूह ने खिलाया और नूह ने करके बताया कि मैं 6 नहीं हूँ। परमेश्वर जो नाराज हुआ था, जो दुखी हुआ था, 120 साल उस विश्वास में चला। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नूह का एग्जाम्पल दिया, तब तक आप और मैं नहीं जानोगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु आपको और मुझे वही चाहता है, तो हम क्यों ना हमारे आप को तैयार करें, गीत गाएंगे हमारे आप को प्रभु आने के लिए। आए हम तेरे चरणों में, आज के बाद प्रभु को कहिए कि हम तेरे चरणों में आएंगे। नूह जैसा 120 साल चला, आज के बाद तुम और मैं, हम उसके पीछे चलेंगे नूह की तरफ, ताकि जैसे जहां पर हम आज बैठे ना, वैसे ही परमेश्वर के राज में बैठना चाहिए, वैसे ही बैठना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है आए हम तेरे चरणों में, गीत गाएंगे, आए हम तेरे चरणों में, आता है
आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा
कहना सिखाते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हम पापी है प्रभु, परंतु आज दोबारा याद दिला प्रभु, हम डूब कर न मरे, हम प्रभु अग्नि से न मरे, मैं मेरा परिवार न मरे प्रभु, अंधकार में न जाए, तो हम प्रभु उजियाले में ही रहेंगे। जो रोशनी, जो उजाला आज के दिन दिखा है, वो हमारे जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। उस विश्वास में बढ़िए, नूह की तरह अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने आप को बढ़ाइए। प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु, हमारे बच्चों को आप सहायता मदद करें, हमारे नौजवान बेटों बेटी को, हमारे भाइयों को, बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, मुझे मेरे परिवार को प्रभु आप सहायता मदद करें, हमारे कलीसिया को प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु। इस 2022 में हम नूह की तरह सज्ज रहेंगे, तैयार रहेंगे, जागते रहेंगे कि प्रभु आप आएंगे और हम अनंतकालीन जीवन में जाएंगे। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हम पापियों का स्वीकार करें, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम हमारी भेंट देंगे 526 उपासना गीत गाएगा 526 उपासना संगीत में से हम हमारी भेंट देंगे। कलीसिया से मिलते हम हमारी जगह Kaveh
विशेष प्रार्थना आ गया है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता, हनों के परमेश्वर, नूह के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर पिता, हमसे असीम प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजाला आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया और आपके नजदीक आपके नाम इकट्ठा किया, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में दी। प्रभु हम पापियों का स्वीकार करें और नूह की तरह आज के बाद प्रभु जो भाई बहन ने निर्णय लिया है कि आपके पीछे पीछे चले गए, प्रभु आपकी आत्मा से भर देना। जिस प्रकार से नूह को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके बहू को भर दिया था, उस प्रकार से प्रभु हर एक व्यक्ति को जो प्रभु आपके पीछे चलने जा रहा है, प्रभु उसके साथ हो लेना। प्रभु मेरे साथ भी आप होना, मेरे परिवार के साथ हो लेना, ताकि प्रभु इस 2022 में आपके पीछे पीछे चलेंगे और प्रभु अनंतकालीन जीवन पाएंगे। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। आज इस सुबह के समय जो भेंट पैसे के रूप में लेकर आए, उसका स्वीकार करें। जो भाई दे सके, जो नहीं दे सके, हर एक पर आपका आशीष रखे। हमारे कलीसिया में जो भाई बहन काम कर रहे हैं, प्रभु बिजनेस करते, उस पर आपका आशीष रखे, उनके साथ आप हो लेना। पिछले साल हफ्ते भर में आपने उन्हें संभाला, इस नए हफ्ते में भी जब भी काम पर जाना ना करेंगे, बिजनेस करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, हर एक बात में प्रभु आपके स्वर्गदूतों के आशीष बरकत की हाथ, चंगाई का हाथ उनके साथ रखे और हर एक को प्रभु आप उस प्रकार का मन देना कि हर दशमांश के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। जो भाई बहन ने प्रभु इसे भेंट दी है, उसका आप इस्तेमाल आपके राज के लिए, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए और प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, इस प्रकार का आशीष देना। हमारे कलीसिया का आप स्वीकार करें। सुबह के समय ये भाई बहन जो इस वेदी पर आए, प्रभु आपसे धन्यवाद दे रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी हर एक प्रार्थना को सुन लेना, आप उन्हें आशीषित कर देना। विशेष करके मोजरेस, आकांक्षा दोनों प्रभु, दोनों को आपने पवित्र विवाह में जोड़कर उनका पारिवारिक जीवन एस्टैब्लिश किया। आज प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारी बहू आई है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दोनों को आपने जोड़ दिया, दोनों को एकत्रित किया, दोनों के साथ आपके प्रेम को बांध दिया, प्रभु आपके पवित्र आत्मा में इकट्ठा किया। प्रभु दोनों के साथ आपको लेना, जिस प्रकार से अब्राहम, इसहाक, याकूब को आशीष दी, विश्वास देकर, इन दोनों का विश्वास देकर इन्हें संतति, संपत्ति, समृद्धि देकर आशीषित करना, उनके साथ आपको लेना। और प्रभु यीशु मसीह आपने कहा बी अलर्ट, जागरूक रहो। दोनों को प्रभु आपकी आत्मा से हर समय जागरूक रखना, ताकि दोनों अपने परिवार को साथ लेकर अनंतकालीन जीवन में जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा भाई प्रभु अविनाश और सोफिया दोनों आपके सियासत के नजदीक आए, इन दोनों को भी प्रभु आपने इकट्ठा किया, दोनों का पारिवारिक जीवन एस्टैब्लिश किया है। प्रभु विश्वास के द्वारा आपके सियासत के नजदीक है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस बहू को हमारे बीच में लेकर आए। प्रभु इन दोनों का पारिवारिक जीवन एस्टैब्लिश किया, दोनों के साथ आप बोले ना, दोनों जब भी आपको पुकारते, जब भी प्रार्थना करते, दोनों के प्रार्थना को सुन लेना प्रभु, और नूह की तरह दोनों को आशीषित करना, नूह की तरह प्रभु विश्वास में बढ़ाना, नूह की तरह आपके पीछे पीछे चलने लगाना, ताकि जगत में दोनों पति पत्नी वैवाहिक जीवन के द्वारा आपका उजाला ज्योति की तरह चमके और प्रभु उनके साथ भी आशीष रखना। अब्राहम को जो आशीष दी, संतति, संपत्ति, समृद्धि देकर, इस हमारे प्रभु दोनों मैरिड कपल पर देना, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस सुबह के समय हम आपके नजदीक आए, प्रभु आप हमारा स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा स्वीकार करें। प्रभु आपने बहुत सुंदर वचन आपने हमें दिया है, आपने हमें सिखाया कि हर समय हम जागरूक रहेंगे, हर समय जागरूक रहेंगे, हर दिन जागरूक रहेंगे, अपने बाल बच्चों को जागरूक रखेंगे और अनंतकालीन जीवन में जाएंगे।
प्रभु आप हम पापियों का स्वीकार करें, इस भेंट का स्वीकार करें, हमारे कलीसिया का स्वीकार करें, हमारी सेवकाई का स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह मेरा भी स्वीकार करें, मेरे परिवार का स्वीकार करें। आप हमें पवित्र आत्मा से भर दें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना विनती कीजिए, आमीन। थैंक यू। तो खड़े हो जाएंगे, 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे। पढ़े। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति जोड़कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में और पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है, तो उनको न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जगत रखनेहार ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत देर तक रहना पाए। तू भूल न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास से बैर करेगा, न किसी पशु के वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हर एक विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। जगह पर बैठ जाए। एंजेलिना मम्मी आई है, मैडम से देखिए आ गया है। मैडम है आएगा।
हमारे दो बहू आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद सूचना इस प्रकार से है, नो टोबैको, नो गुटखा, नो अल्कोहल। चर्च टाइमिंग है शुक्रवार को 10 बजे, रविवार को 9:30 बजे। 6 तारीख को वर्ल्ड प्रेयर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे को। डिस्ट्रिक्ट WCS आए मैडम, उसके मैडम वर्ल्ड प्रेयर डे का तैयारी कीजिए। उसके बाद 13 तारीख को वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे अपन सेलिब्रेट करेंगे। आफ्टर चर्च पास्टर कमेटी है, सैटरडे को कंफर्मेशन क्लास होता है, बुधवार को महिला मंडल की प्रार्थना नहीं होगी। एक बार हमारा लेंथ की पीरियड शुरू हो रहे हैं अपने प्रार्थना उपवास के लिए। मेथोडिस्ट की भी प्रार्थना नहीं होगी ना, तो हर दिन प्रार्थना रहेगी। अभी जो हमारे 2-3 दिन की प्रार्थना है तो नहीं होगे, हर दिन 40 दिन की हमारी प्रार्थना शुरू होगी। एश डे को प्रार्थना है। कॉटेज प्रेयर्स के लिए जिन्हें नाम देना है आपके घर में, कॉटेज प्रेयर 40 दिन में, चर्च खत्म होने का नाम, पता, फोन नंबर तीनों देना है लिखकर। हाँ, बाद में बता दीजिए। ऑफरिंग लास्ट संडे को जो हुआ, संडे कलेक्शन 7050, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग 1650, इवेंजेलिकल बॉक्स 1530, डोनेशन बॉक्स 2100, टोटल मिला के 12330 पिछले संडे। जिस किसी को 40 दिन में सरमन देना है, आपको संदेश देना है, आपको मदद भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। आप आपका नाम, आपका पता दीजिए, चर्च खत्म होने का मुझे तुरंत देना है, क्योंकि हम लोग लिस्ट बनाएंगे। बजट बनाना है। मैं लास्ट संडे बताया था आपको, चारों वीक्स को संडे स्कूल, मेथोडिस्ट में से MYF और WCS बजट बना दीजिए। और जो 9 स्टैंडिंग कमिटीज है उन्हें भी आपको बजट बनाना है। 13 तारीख को जब फाइनेंस मीटिंग होगी, उसमें आपका बजट हम फाइनल करेंगे 2022 और 2023 में, और नेक्स्ट मीटिंग में पास होगा। मेथोडिस्ट मेंस फेलोशिप मीटिंग उन्होंने रखी चर्च खत्म होने के बाद बजट बनाने के लिए। तो सभी मेथोडिस्ट मेंस के सभी भाइयों ने चर्च खत्म होने का मीटिंग में आप मौजूद रहिए। लैंड टिन बॉक्स, जो लास्ट ईयर आपको जो बॉक्स दिए थे टिन्स के, आप जल्द से जल्द आकर दीजिए हफ्ते में। प्रीचिंग सेंटर्स जो हमने खोले, उसके लिए आर्थिक रूप से सहायता मदद करें, क्रिस्टोफर ब्रदर के पास दीजिए। आपको जो भी भेंट देना है मेरे पास लाकर दीजिए, हम आपको रिसीप्ट देंगे। बैंक अकाउंट नंबर चाहिए तो बैंक का अकाउंट नंबर भी डिस्ट्रिक्ट का आपको दिया जाएगा। इस समय स्वागत करते, उसके बाद आप दोनों आएंगे, दोनों कपल्स आएंगे। फास्ट आइए। ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं सिर्फ यह सूचना देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ कि 2 मार्च यानी कमिंग वेडनेसडे से हमारे उपवास के प्रार्थना शुरू हो रहे हैं। और यह निवेदन है पूरे कलीसिया को कि अगर आपके घर में कोई विशेष दिन है, किसी के आपके बच्चों के बर्थडे या एनिवर्सरी, तो आप वह प्रेयर रखना चाहते हैं आपके घर में, तो आप अपने डेट और अपने घर का एड्रेस मेरे पास या क्रिस्टोफर ब्रदर या क्लेमेंट सलीम के पास दीजिए। अभी चर्च छूट रहा है, इसके बाद हम 2 बजे तक भी चर्च में ही है। आप अभी नाम दीजिए, आप पूरा एड्रेस के साथ नाम दीजिए। फिर बाद में क्या होता है, बर्थडे है, सर को बुलाते हैं, फिर क्लैश होता है कि यहाँ इसके यहाँ प्रार्थना कहाँ जाए।
तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी आप दीजिए, हम लोग नीचे हैं, अभी 2 घंटे तक हम चर्च में हैं, तो अभी आपका नाम दीजिए ताकि हम आज प्रिंटिंग को पेपर दे सके। तो आज वेडनेसडे को हमारा प्रोग्राम शीट तैयार होके आपके हाथों में आएगा। प्लीज कोऑपरेटर्स, थैंक यू वेरी मच। यस, और जो सहमत लेना चाहते हैं 40 डेज में, वो लोग भी नाम दीजिए आपका। इसलिए हम लोग अभी 2 बजे तक भी नीचे हैं, आप फैमिली से डिस्कस करके। वैसे भी लास्ट संडे से भी आपको अनाउंस हुआ है, आपका डिसीजन हुआ होगा, तो आप आपके नाम और एड्रेस दीजिए। अगर किसका घर चेंज हो गया है, हाँ, WCS का भी मीटिंग है। WCS चेयरमैन प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि आज चर्च उठने के बाद अभी यहाँ पर WCS का मीटिंग भी है, आप सब लोग रुकिए। थैंक यू।